अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। लम्स लाइफ के 91वें सेशन में आपका बहुत खुश आमदीद। इससे पहले कि हम अपने बाकायदा सेशन का आगाज़ करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा 51st सेशन है। इससे पहले 50 सेशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो चुके हैं, जिसमें बहुत से मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और बिल्कुल मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात की। ख़ास तौर पे हमारा पिछला सेशन 50वां सेशन एक बहुत ज़बरदस्त सेशन था, जहाँ पे हमने पूरे का पूरा उसको कंक्लूड किया और बताया ये कि हमने हमारा जर्नी 50 सेशंस का रहा कैसे। आज का जो सेशन है उसके बारे में बताने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि दिस वाज अ सीरीज व्हिच कंसिस्टेड ऑफ 4 पैनल्स. The first 2 panels were dedicated for the software industry. The third panel was for the game industry, and the last panel was designed for the design and the creative industry. हम इस निशिस्त में पहली वाली निशिस्त में we have already talked about the software industry. और हमने आपसे कहा ये था कि इसके बाद हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन के ऊपर, पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर, और डिजिटलाइजेशन की जो एफर्ट्स पाकिस्तान में चल रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव मिस अमारा मसूद, जो कि सीईओ हैं और प्रेसिडेंट हैं एनडीसी टेक की, एंड ऑल्सो सैयद अहमद, who is the CEO of DPL, but other than that, he's also having lots of initiatives. He's also on the IT task force for Prime Minister. He's also on the board of the KPK IT. And other than that, he's also serving on Paral. So both of Ms. Amara as well as Sayyid Ahmed have experience from the last 20 plus years of experience in working in the industry, and they have been a part of many different initiatives in the last many years. We in the first session we also talked about कि Pakistani software industry is doing pretty well, you know. So हमारी growth पिछले साल में 2.5% थी. We moved from 1.6 billion of exports to 1.9 billion of exports, and that's an official number. And we all know that हमारा जो informal number है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि हमारी document economy का part नहीं बनता. अगर local industry को देखें तो local industry has been working very hard in promoting internationally itself internationally. लेकिन एक चीज़ इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वो ये कि क्या local industry is also contributing back to the Pakistani economy and Pakistani digitalization efforts. और आज का टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर है कि क्या हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इनफ कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर नहीं कर रही तो उसकी क्या वजह हैं और हम आगे कैसे इस चीज़ पे चल सकते हैं. अगर आप पाकिस्तान दुनिया की इकॉनमीज़ को देखें जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर जिन्होंने फोकस किया है, तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के जरिए उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. आपकी कॉन्स्टेंट इकॉनमीज़ हैं, आपकी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, आपकी ट्रांजिशनल इकॉनमीज़ हैं और आपकी एडवांस इकॉनमीज़ हैं. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसको कॉन्स्टेंट इकॉनमी के अंदर कहा जाता है कि हम उसमें फॉल करते हैं. अगर आप स्कैंडिनेविया को देखें, they're all part of advanced economies, and even UAE and Qatar have become a part of the advanced economies. So this really brings us to our first question, and that is that countries that have achieved advanced level of digitalization by ensuring the mass adoption of connected digital technologies, ICT, by consumers, by enterprises, and by government, have realized that economic and social and political benefits are huge. So where do we think we stand in Pakistan? So I would like to ask first from Amara Saiba, that where in Pakistan do we stand on 3 different levels, on digitalization of consumers and use of tech by consumers, digitalization for enterprises and their use of ICT, and thirdly, the government organizations and the use of technology by the government organizations. Just your general overview, that where do you think we stand? Including me in this session. So I think, in terms of where the Pakistan digitization stands, I would like to take you back a little bit because, as you know, इससे पहले जो है IT industry का इतना हम सुनते नहीं थे पाकिस्तान में, because it was a very small, insignificant industry, and it has only been
maybe a few years, or I would say lately, probably in the last 1 year, where the Pakistan software industry has gained some kind of significance. And this also has to do with the supply side, which institutes like yours and many other institutes are also seeing that there is a lot of demand for studying in IT, and the demand can only be there for studying IT when there are jobs in this market, right? So what we are seeing is that there is a definite growth. We are probably not in the top contenders, but the good news was that in this last 1 year, when we were rated in the top 3 in the freelancing, the even the government itself recognized that this is an industry that if we give some importance to it, and if we do some interventions, then maybe this can give back to our economy is in a significant way. And so this has really helped. The other part is, of course, as you know, COVID has come in, and a large part of the acceleration of digitization has to do really with the situation of COVID, when everything had shut down, and every kind of enterprise was struggling to see how they can operate in this kind of a remote world. I mean, companies like us, our company NDC Tech, we work in about 15 different countries in this region, in APAC region and Middle East region. And what we saw is that the demand side has really increased during these COVID times, because and that could be a short-term thing as well, because obviously everyone was struggling in the beginning to see how they can do something to make themselves digital as soon as possible if they had not done anything before, or they wanted to accelerate some of the initiatives that they had been thinking about for many years. So I think from consumers' perspective, I mean, personal example is that banking has really taken off in this particular segment for digitization, because पैसे तो सबको चाहिए होते हैं और transactions करनी सबके लिए ज़रूरी होती हैं, whether you are a business or you are a person sitting at home. So when you are a person sitting at home and you want to do certain transactions, now obviously the methods that were available is कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें online available हैं उनको जाके करें, और कोई payment method इस तरह का इस्तेमाल करें कि या merchant के account में directly पैसे चले जाएं, या फिर वो किसी तरह उसको IBFT के through या कोई इस तरह का mechanism use करते हुए करें. तो बहुत सारे हमारे पास वर्क अराउंड्स भी आए. ये हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरवेंशंस किए ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, which were really some excellent, I mean, State Bank, the central bank itself, as well as policies of the government, who tried to intervene in some way or the other to make sure that they support this process of acceleration in digitization. Both for the consumer side as well as the B2B side. So, they wanted to look after the SMEs, they wanted to look after the corporates, and whatever type of interventions that they were seeing were working globally, they did it pretty soon. Even though हम पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, लेकिन इस केस में we saw that there was a lot of acceleration done at the beginning of COVID. Okay. Ji, Syed, would you like to add to this? Up mute pe. I think Pakistan digitalization में बहुत unfortunately पीछे रह गया, और especially e-government के हवाले से if we look at it, so even the most basic of things we are essentially उसमें हम progress बहुत ज़्यादा नहीं कर सके. जब आप digitalization की बात करते हैं तो first of all you talk about data, availability of data. Unfortunately,
most of the government still is working on the files and how, आप कह लें मैनुअली चल रहा है सारा कुछ. ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देख लें, बाकी देख लें. इसी तरह द वे गवर्नमेंट वर्क्स, ई ऑफिस को हम लोग मेरे ख्याल में 13-14 साल हो चुके हैं, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका. गवर्नमेंट में फाइल्स वगैरह ही मूव होती हैं और साइन होती हैं. I mean, these are very basics, foundational things जिसके ऊपर फिर बाकी चीज़ फाउंडेशन बनती है गवर्नमेंट की. We do see progress happening, we do see a push, but I think कि हम लोग अभी I mean we have lost 15-20 years when it comes to e-government के अंदर जहाँ पे हमें होना चाहिए था. So we hear this thing कि हमसे ये वाली कश्ती मिस हो गई और हमसे वो वाली ट्रेन छूट गई. हमने we used to hear a lot कि हमसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पूरी की पूरी ट्रेन थी या पूरी का पूरा शिप था, we missed that. Do you think, just quickly comment on this, do you think we are too late on this? Have we missed the ship or the train, or do you think we can still catch up? I think you see, I don't think इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर आप जैसे बात करें तो हमने वो आखिर में उसकी दुम पकड़ ली थी. और उसमें जब अयूब दौर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए, उसकी वजह से टुडे यू सी पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर एक दुनिया में एक पावर हाउस है और स्टिल इज लार्ज पार्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स. So I think we still can reap huge benefits. ये तो अभी तो knowledge economy era शुरू हुआ है. I would say कि we are not too, I mean, अभी भी आप इसमें there are ways. For example, पहले कंप्यूटर्स थे, इंटरनेट थे, वो नहीं आए, मोबाइल आ गए. मोबाइल gives you an opportunity कि आप शॉर्टकट से एकदम मोबाइल पे अपनी पॉपुलेशन को ले आए और वो फिर you can make catch up on a lot of that. So I think we have not lost it. मगर अगर अयूब दौर की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की तर्ज पे नॉलेज इकोनॉमी रिफॉर्म्स नहीं हुए, जो कि स्वीपिंग रिफॉर्म्स हों, जो कि इस सेक्टर को समझते हुए किए जाएं, वो क्योंकि अगेन इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, इट्स नॉट इट्स अ इनटेंजिबल थिंग. सो अभी जो मैं देखता हूँ, सारी गवर्नमेंट वर्क्स ऑन टेंजिबल्स, वर्क्स ऑन द इंडस्ट्रियल माइंडसेट. So unless we understand knowledge economy is different, it requires a totally new mindset. और इसके लिए टोटल एंड टू एंड रिफॉर्म्स चाहिए, बजाय कि हम वो पैचवर्क की बात करें. तो आई मीन सो फार अनफॉर्चुनेटली वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की लेवल की चीजें तो मैं अभी नहीं देख रहा होते हुए, मगर अगर हमने वो अगले 3-4 साल में नहीं की तो फिर डेफिनेटली वो शिप हाथ से निकल जाएगी. जैसे ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और ये कामों पे चाइना, अमेरिका, ये सारे इतना इन्वेस्ट करें, तो ये एकदम आई मीन ये बड़ी तेजी से टाइम गुजरेगा. सो इट्स अ क्रिटिकल टाइम फॉर अस कि अभी भी हम इसको कैच अप कर लें. Excellent. Amara, coming to you, and that's also one of the key points which I wanted to raise today in today's session is the role of local software industry in all these digitalization efforts. So I'll start very general here, and then I'll go a little deep into this. And what role do you think Pakistani software industry currently is playing in all these digitalization efforts? Okay, so I think we as a software industry as a whole, we are in a very early stages. I would say the companies which are doing well and that you hear about, coming from Pakistan, are mostly companies which are into products, and there are very few, 3 to 4. There are companies which are also into services, mostly exporting. Okay. There are very few companies which are actually working only in the local market, and they are very large. I mean, I would say कि 1-2 गिनती की होंगी, लेकिन जो सिर्फ लोकल मार्केट में काम कर रही हों यानी पाकिस्तान में, और उनका साइज जो है वो एक सिग्निफिकेंट साइज हो in terms of bringing in revenue and the number of people they employ.
सो इसको इससे ये पता चल जाता है कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमी की स्टेट है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, वो अभी बहुत नीचे स्टेज में है. और हाउ, आई मीन यू नो, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड दैट हाउ कैन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री प्ले अ रोल. देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैन ओनली प्ले अ रोल when there is experience built into this industry, right? So unless we work on large, super large projects, medium sized projects, small projects in our local market, it becomes very difficult to go and sell it outside of our country. But I mean, in our case, we have actually learned the reverse way. Most of our work has come from export oriented, where Pakistanis who are living in the US or UK or other countries have set up, like, let's say, a development shop here in Pakistan, have employed 1,000 or so people, and then they have tried to work on that model, right? So हमने उस तरह करके अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप की है. लेकिन अगर आप देखें कि गवर्नमेंट में क्या लार्ज प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो भी बहुत गिनती के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, और उसमें लोकल इंडस्ट्री का बहुत ही कम शेयर है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इंटरनेशनल कंपनीज को टेंडर मिल जाता है, उन्हीं को, और उसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसमें लोकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप भी कर सके. अगर होता भी है तो मोस्टली सेल्स के एरिया में होता है, और उसमें आपका जो टैलेंट पूल है वो सब डेवलप नहीं हो पाता. So I think this is exactly where we want to grow our industry. इसी तरह आप जैसे देख रहे हैं कि freelancers की एक बहुत बड़ी मिक़दार पैदा हो गई है, because lots of people are graduating from the universities, from different colleges, from these technical institutes, etc. And they're finding work on all of these online platforms, and they're able to obviously earn much more than in the Pakistani market. So the interest is also less to be working in a local software company where they could be doing anything. So I mean, I'll wait. Maybe you have some upcoming questions related to what government interventions are needed in that case. But I think I think Amara, just looking at the state of okay, Syed, I'll come to you on this question also. So if you can extend that, but also I will sort of throw a related question, which has become a very burning topic in many of our discussions here, that जब government खुद ही software house बन जाए तो फिर हम क्या करें? And that is that most of the development work when you see locally is being done through IT organizations themselves, जो government के अंदर होती हैं, चाहे वो पराल है, वो नादरा है, PITB है, NETB है, NRTC है, सब जब ये सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और and then they also maybe sometimes pair up with the larger companies, and then the work is only been done with a smaller group. So वो जो transfer of knowledge है to the local industry वो भी नहीं होता. And very often we have also seen that these case studies are also not translatable. यानी जो कुछ आपने अफ्रीका में किया या साउथ अमेरिका में किया या नॉर्थ अमेरिका में किया, शायद रेडिली पाकिस्तान में ट्रांसलेट भी ना हो सके. सो आई थिंक एट मेनी डिफरेंट लेवल्स देयर माइट बी, हमारे ने भी इसको हाईलाइट किया, हाउ वुड यू टेक दैट the role of local industry, but also government becoming a software house, which is a very difficult thing in itself. So this issue we have raised quite a lot since last few years. We believe that one of the reasons IT इंडस्ट्री लोकली उस तरह से ग्रो नहीं कर पाई जैसे दूसरे मुल्कों में करती है, वो डिमांड उसके लिए जो इंटरनेशनली आपने कोई प्रोजेक्ट्स लेने हैं, विन करने हैं, तो उसके लिए आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं. इवन हमारे लोग कहते हैं कि जी आपने अगर ये प्रोजेक्ट विन करना है तो 3 रेफरेंस लेके आए जहाँ पे आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है प्रोजेक्ट. और जनरली पूरी दुनिया में रेफरेंसेस कंपनीज को लोकल इंडस्ट्री अपनी लोकल गवर्नमेंट में काम करके लोकल डिप्लॉयमेंट्स के अंदर मिलते हैं. वो लोकल बिजनेस अव्वल तो बजट्स आर ऑलरेडी टू लो व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, जो हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट खुद करती है, तो उसकी वजह से वो जो लोकल रेफरेंसेस और पोर्टफोलियो बनाने की एक अपॉर्चुनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है.
इंडस्ट्री के लिए। सो उस हमें वी बिलीव के बहुत सारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, PITB, NITB, नादरा, प्राल, NRTC, you name it, dozens of organizations which are essentially software houses, जो कि पहले तो काफ़ी वो कंपटीशन एक उसमें थे, अभी भी इवन दो एक रियलाइजेशन है गवर्नमेंट में कि ये प्राइवेट इंडस्ट्री से के साथ पार्टनरशिप में करना चाहिए, मगर वो कर नहीं पा रहे उसको, दे कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। सो वी हैव टू सी कि ये क्यों गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाती है और क्या मसला क्या, व्हाई डू यू, व्हाट आई हैव सीन इज देयर आर 4 की प्रॉब्लम्स। एक तो गवर्नमेंट में अभी भी वो काफी हद तक एक फीता काटने वाला माइंड होता है कि आप जल्दी से 2 दिन बाद कुछ बना दें और वो कोई फीता काट लें और फोटो ऑप्स हो जाएं। सो अब उसके लिए जाहिर है अगर आपने एक अच्छी आईटी को एग्जीक्यूट करना है, यू नीड टाइम। अगर आपने कुछ दिनों में कुछ करना है तो वो तो फिर कैन नॉट बी काइंड ऑफ डन इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग वे। तो उसके लिए फिर इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट कि आपके पास लोग बैठे हुए हैं और वो उन्होंने कोई एक उसको हम कहते हैं खोखा बना के दिखा दिया और उससे आपको you get the mileage that you need and you move on, पीछे वो प्रोजेक्ट whatever happens to that। दूसरा एक सोच है गवर्नमेंट में जो बहुत गलत है कि इदारों को कहा जाता है कि आप सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं, आप पैसे कमाएं और आप गवर्नमेंट से पैसे ना मांगें। सो अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट के जो ये इदारे हैं सेमी ऑटोनोमस हैं, उनसे व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड के जी, और वो भी क्या समझते हैं कि हमें बजट लेना मुश्किल होगा गवर्नमेंट से, तो वो ऐसे रास्ते निकालते हैं कि हमें खुद ही कमाई कर लें हम लोग और हमें गवर्नमेंट से पैसे ना मांगने पड़े। बेस्ट उसकी एग्जांपल वो नादरा की है, क्योंकि वो दे हैड अ बिजनेस मॉडल विद इन देमसेल्व्स, तो उन्हें क्योंकि गवर्नमेंट से कभी पैसे नहीं मांगने पड़ते, तो दैट्स व्हाई दे आर काइंड ऑफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी हेल्दी फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग। मगर उससे फिर होता क्या है कि दे एंड अप काइंड ऑफ यूजिंग देयर मोनोपोली टू मेक ऑल द मनी फॉर देमसेल्व्स, और बाकी इकोनॉमी स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर सिटीजन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो दैट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ ई गवर्नमेंट, और जब तक सिटीजन आइडेंटिफिकेशन एक अफोर्डेबल वे में यूज नहीं कर सकती स्टार्टअप्स और दूसरे गवर्नमेंट के इदारे, उस वक्त तक वो फिर आपकी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। बट इफ अगर एक इदारा उस सिटीजन आइडेंटिफिकेशन को काइंड ऑफ यूज करे टू जस्ट मेक मनी फॉर देमसेल्व्स, सो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आई हैव सीन हर इदारे में मैंने ये मसला देखा है कि वो ये माइंडसेट होता है पैसे कमाएं। तीसरा कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कॉम्पिटेंस होती है वो मिसिंग है। सो या तो उनकी कोशिश होती है कि क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी से डिलीवर करवाना है तो उसके लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर वो आपके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो जब कॉम्पिटेंस नहीं होती तो वो फिर वो इस काम से बजाय कि वो कहते हैं मैं पूरा एग्जीक्यूट करूँ, इसको रिस्क लूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, आइदर दे वांट कि कोई बाहर से बड़ी कंपनी आए, वही मुझे रिक्वायरमेंट लिख दे, वही मुझे सारा कुछ बताए कि मैंने क्या करना है, सो ऑल आई नीड टू डू इज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और वो सब कुछ डील करे। और दूसरा, या फिर वो कोशिश करते हैं मेरे पास लोग बैठे हों तो वो डजंट मैटर कि वो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बना रहा है या कितने में, पेज तो गवर्नमेंट से आ रही है। तो ये तीसरा एक कॉम्पिटेंस की कमी है जो कि बहुत बड़ा एक रीजन होता है। चौथा मैंने देखा कि सिंपली स्पीकिंग वो कहते हैं हमारा मैंडेट ही नहीं आईटी इंडस्ट्री या ई गवर्नमेंट, हमने तो अपना इदारा हमारा मैंडेट है, ब्रॉडर पिक्चर वी डोंट केयर। सो उसमें क्या होता है कि या तो गवर्नमेंट पॉलिसी उसको एनफोर्स कर रही हो कि दिस इज हाउ, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में, अमेरिका में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने कैसे कितना प्रोजेक्ट है तो वो एसएमईज को जाना चाहिए, वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को जाना चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप। सो यहाँ पे इन लैक ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट एनफोर्सेस अ गवर्नमेंट लार्जर स्ट्रेटजी ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड सेकेंडली आई वुड से कि लैक ऑफ सेंट्रल leadership, that kind of 1 or 2 kind of central leaders who are creating a strategy for the e-governance right now, वो हमारे पास सेंट्रल लीडरशिप नहीं है जो कि ड्राइव करी हुई इस एजेंडे को सेंट्रली। तो ये 3-4 मसले हैं और आई थिंक कि दैट्स ठीक है। सो इन द एंड वी हैव दिस इशू कि या तो सारे प्रोजेक्ट्स बाहर की कंपनीज कर रही हैं या हमारे इदारे सरकारी खुद करें, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री को अब मौका नहीं मिल रहा। अब उसका मगर जो हल है वो थोड़ा सा it's quite I would say आपको फिर ये पूरी पिक्चर समझ के देन यू हैव टू
rather than just saying कि जी आप देना शुरू कर दें, तो that won't be happening. Excellent. And I'll come back to this solution also. But Imara, coming to you, one of the things we have seen in the developed world, या वो economies जो अपने आप को transitional कहती हैं या advanced कहती हैं in terms of digitalization, उन पे एक बहुत बड़ा push private sector से भी आता है. That private sector ने एक काफी digitalization achieve कर ली, और वो कहते हैं कि अब जब तक government नहीं करेगी, हमारी growth रुक जाएगी. So then the economy speak for itself. You know, the economy forces the government to sort of take an action, because inaction is very bad for the growth of the private sector, be it banks, be it insurance companies. Yeah, आपकी बाकी. So do you, and you because work with banks a lot, and आपका पूरा आपका experience भी है. Do you think the time has come in the local industry, Pakistan industry के अंदर के अब banks and other industries जो कि digitalization में यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि वो push करना शुरू करें गवर्नमेंट को, या अभी you think कि अभी push नहीं आएगी? Yeah, I think in Pakistan there are some industries which are in advanced stage, and I would say they compete with the global standards of digitization, and I think banking is one of them. Because I mean we work with globally with so many different banks, and so the ambitions of banks in Pakistan and banks abroad are pretty much the same. जैसे आपने पहले कहा कि हम जरूर सीखना चाहते हैं बाहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से, लेकिन हमें काफी कुछ पता भी होता है in some industries. इसी तरह मेरा ख्याल है टेलीकॉम में भी यही है कि टेलीकॉम is also in quite an advanced stage of digitization, and they have been able to bring in technology that has worked in the developing countries who are very much in advanced stages of digitization, right? So, but other than these two industries, there is no third private sector industry other than the government, right? So so when you go to an industrialist, I mean, whether it is he's a manufacturer of car or motors or parts, or he's a dealer of cars or textile mill or whatever, you go into any industry and they are very good at buying boxes, because it's hard thing, and there's a server which is coming in, and there's a delivery of that happening. But when it comes to software and the implementation of the software, they are looking for, I mean if they are paying 100,000 rupees for a software, वो कहते हैं अच्छा मतलब पहले बताएं कि डब्बा कहाँ है, right? उसके बाद वो जब आ भी जाता है तो they don't want to pay for the implementation of that work. So I think वहाँ पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से हमारी इकोनॉमी जो है वो उसमें एक चाबी लगेगी, और वो जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट हैज़ टू डू विद एफबीआर और कस्टम्स और नादरा सर्विसेज और व्हाटएवर एल्स इट इज, they will basically interact with all of these digitization services that the government has to offer. And we need to do some kind of interventions with the private sector. And I think one of the main things which I feel is lacking in Pakistan is that a lot of the people who invest in other kinds of industry in Pakistan, और जो बड़े businessmen हैं पाकिस्तान के, वो मतलब सर्टेन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब आईटी की बात आती है तो वो काफ़ी घबराते हैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट. तो गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद इंसेंटिव्स, गिव सम काइंड ऑफ टैक्स rebates, things like that, which basically incentivizes the big businessmen who are taking their money out of the country to in fact invest in Pakistan and set up industries within IT themselves, which is going to make some difference. और अपनी जो उनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जैसे टेक्सटाइल में है या फार्मास्यूटिकल में है या कार मैन्युफैक्चरिंग में है या किसी और चीज़ में है, उसमें बेसिकली लेके आए. आई थिंक और जो एक और चीज़ है which is agriculture. Agriculture is one of the biggest sectors in Pakistan. And you can see examples of China, who has been able to do so much in using technology and increasing the productivity in agriculture. So उन चीज़ों में हमें देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे हम कैसे
इंटरवेंशंस करके उन एरियाज को एक्सेलरेट करें और पाकिस्तान को फिर उस स्टेप्स पे लेके जाएं. Excellent. I'll come back to you, Amara, again on some of the concrete solutions we think should be there. But Syed, coming to you, Amara also talked about this big freelancers community. Also, you also talked about small and medium industries which can contribute to the economy. I'd like to ask you specifically, what is the best way to excite these groups so that they can start supporting private sector as well as the government? And for example, we know startups at LUMS and startup at NICs who would like to sort of support textile industry, digitization के अंदर support करना चाहते हैं, automation में support करना चाहते हैं, agriculture में support करना चाहते हैं, fertilization के अंदर support करना चाहते हैं, और जगहों पे करना चाहते हैं. But and NIC का framework भी exist करता है, but still I think we lost in the translation. We're not there yet. So आपके ख्याल में what are some concrete steps the government can take? And these startups who are listening maybe now, they can learn from your suggestions. So पहली बात तो ये आपने बताई कि freelancers का जैसे we have been world's number 3 or 4 for quite many years now. So I think instead of celebrating this fact, कि on one hand हम number 3 या 4 पे freelancing में और IT के अंदर हम लोग पता नहीं 30वें नंबर पे हैं कि कौन सा नंबर है वो नंबर भी नहीं हमें पता. मेरे ख्याल में ये this shows कि there's a problem in our ecosystem. Freelancers इतने ज़्यादा हैं, that shows कि एक तो उनकी they're not being used in the industry. Secondly, ये कि नजर आता है कि ये freelancers cannot move up the value chain. वो SMEs नहीं बना पा रहे, small companies नहीं बना पा रहे, small companies medium नहीं बन रही, medium large नहीं बन रही. ये सारा clog हुआ हुआ system. So instead of हम नीचे वहाँ पे free, so a lot of today's companies, successful companies you see, they were 15 years ago freelancers. मगर वो उन्होंने वहाँ से शुरू किया freelancing marketplaces से, and they became big companies. But last 5-10 years से ये process रुका हुआ है, वो आगे graduate नहीं कर पा रहे. और उसका नुकसान ये है कि जो आज का freelancer है, वो 10 साल बाद शायद आपसे आधे पैसे कमा रहा होगा, क्योंकि a lot of things will be automated. So unless they move very fast up the value chain, वो चीज हमारे लिए healthy नहीं है. और we see a lot of problems why ये लोग कंपनियां नहीं बना पा रहे और jobs create नहीं कर पा रहे. इसी तरह startups हैं, वो हम incubate कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, but वो उनकी success market में जाके वो नहीं चल पा रही. हाँ, जो बाहर की मतलब ecosystem से connect हो जाती हैं, वहाँ तो वो ठीक है. पाकिस्तान में we see a lot of failures. Failure is fine, मगर there needs to be a pathway to success as well. और मसला ये है कि वही बात कि जब business environment में बीमारी है, essential fundamental problems हैं, तो ये grow नहीं कर पा रहे. So बात फिर mindset पे आती है कि private sector, देखें startups हों या freelancers हों या IT companies हों, mindset ये सारे businesses हैं. और mindset of government toward private enterprises is very negative. और that's why आपको गवर्नमेंट के जितने मॉडल्स हैं वो प्राइवेट पार्टनरशिप को अलाउ नहीं करते कि कैसे हम लोग प्राइवेट स्टार्टअप्स के साथ काम करें. फॉर एग्जांपल, अगर डेटा एनालिटिक्स की कंपनीज हैं, व्हाई कैंट दे बी वर्किंग विद लेट्स से एफबीआर टू फाइंड आउट टैक्स एवेडर्स एंड ऑल दैट? क्यों वो एक गवर्नमेंट की ही कंपनी ने सारा कुछ वो करना है? इसी तरह देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स जहाँ पे कैपेबिलिटी स्टार्टअप्स में है मगर उन्हें वो मौका नहीं दिया जाता. मुझे खुद कई स्टार्टअप्स ने अप्रोच किया कि फॉर एग्जांपल समवन हैड अ वेरी गुड ये जो बिजली का ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए उसमें लॉसेस कम करने के लिए सिस्टम, बट वो यही हुआ कि वो वंस दे वर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, वो फिर इवेंचुअली वो गवर्नमेंट इदारे हाईजैक कर लेते हैं. और वो बिकॉज वो प्राइवेट बच्चे के पास वो उतनी नहीं है मसल के वो उनके साथ फाइट कर सके. सो आई थिंक न्यू हम अगेन वो जो पुराने मॉडल्स पे काम कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं जी मैं ये टेंडर दूंगा और बिड दूंगा और मुझे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मैं डिफाइन करूंगा और फिर आप उसमें आपने उसमें प्राइवेट इनोवेशन की कहाँ गुंजाइश रहेगी. सो आपको नए मॉडल्स लाने, नॉलेज इकोनॉमी को समझते हुए, ये बात समझते हुए कि वी डोंट नो व्हाट वी नीड. दीज स्टार्टअप्स आर गोना कम
and they are going to introduce new solutions that we don't even know yet. So for that आपको फिर एक फॉर एग्जांपल नए मॉडल्स क्रिएट करने हैं जिसमें आप कहें कि ये हमारी गवर्नमेंट की टॉप प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आपके पास डेटा अवेलेबल है, आपके पास यूजर बेस या सिटीजन अवेलेबल है, एंड यू से कि ठीक है दिस इज ऑल द रिसोर्सेज गवर्नमेंट हैज एंड दिस, और इसको आप मीट कराएं, आप एंटरप्रेन्योर्स को अलाउ करें कि आके हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंड इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम nobody is going to hijack your idea and take it away, but we are going to, I mean, that your success will take you make you big, we will help you get big. तो उसमें मेरे ख्याल में ये हमें माइंडसेट चाहिए, नए मॉडल्स क्रिएट करने हैं गवर्नमेंट की, चाहे टेंडरिंग हो, चाहे गवर्नमेंट के द वे दे काइंड ऑफ प्रोक्योर प्रोजेक्ट्स, उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो मॉडल्स बड़े नए आए हैं, जिसके अंदर आप कस्टमर जर्नीज की बात करते हैं, जिसके अंदर आप टेस्टिंग की, नए आइडियाज को टेस्ट करने की बात करते हैं. सो देयर इज नो मॉडल इन गवर्नमेंट टू टेस्ट न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज. तो ये सारे मॉडल्स बाकी दुनिया में तो चल रहे हैं. उसके लिए जरूरत यह है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ बोल्ड स्टेप्स गवर्नमेंट में लें नए आइडियाज क्रिएट करने के. वो डर भी होता है कि पता नहीं नैब आ जाएगी, वो कहेगी ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये तो है ही नहीं अलाउड. तो उसके लिए then you need that kind of a bold step to create those new models. इसलिए मैं वो रिफॉर्म्स की बात कर रहा था कि वो रिफॉर्म्स पर आपको एक फ्रेमवर्क दे देते हैं ये काम करने के लिए. बट अगर जब नहीं भी होते तो आपको स्मॉलर स्केल पे उसको करें. और आई थिंक जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, हमने एक पीटीआई की डिजिटल पॉलिसी के अंदर सिटी एज अ लैब का कॉन्सेप्ट था. सिटी एज अ लैब का मतलब यह है कि मेरे पास स्कूल का सिस्टम है, जब डजन्स ऑफ पीपल हैव मेड स्कूल सॉल्यूशंस, मगर वो मैच्योर सॉल्यूशंस नहीं है, वो टेस्टेड सॉल्यूशंस नहीं है. आपके पास गवर्नमेंट के हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स हैं, आप कहें कि ठीक है लॉट्स में हम आपको स्कूल्स देते हैं सारी, जिसके पास सॉल्यूशंस आगे इंप्लीमेंट करें, जिसका सॉल्यूशन बेहतर रिजल्ट्स देगा, वी विल स्केल इट अप एंड वी विल पे इट. अभी तक आपके पास 5 प्रोडक्ट्स स्कूल की निकल चुकी होती. सो इस तरह से आई थिंक हम अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें तो उसी में मैंने एक एग्जांपल, एक आइडिया डाला हुआ था सिटी एज अ लैब के अंदर ही. जो एग्जांपल के तौर पे हमने आइडिया डाला था कि मेट्रो बस स्टेशंस हैं, उसके अंदर अगर आप उसी के साथ साइकिल्स को स्टैंड लगा दें, वो गवर्नमेंट की जगह, मगर गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को दे के आके आपने अगर यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक्स लगानी है, साइकिल्स लगानी है, तो वी गिव यू दिस, और रेवेन्यू शेयर कर लें या कोई भी तरीका. तो अभी हमने देखा एक एनआईसी की एक स्टार्टअप ने इस्लामाबाद में इस तरह का एक सोल्यूशन किया. तो मगर इसको अब ये तो ठीक है, वो उनके कनेक्शंस होंगे, उन्होंने किसी तरीके से वो इफ दे मेड इट वर्क. आम स्टार्टअप नहीं कर सकती. उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क देना है कि गवर्नमेंट की ये रिसोर्सेज हाउ कैन दे पार्टनर अप. इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एज अ सिस्टम वो फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है कोलैबोरेशन से. No, that's a very interesting and comprehensive reflection on the state. Coming back to you, Amara, what do you think as some of the top 2-3 key, before I move to the next topic, 2-3 things or items government must have on its agenda? And I like to add a little bit more that it's not that government is not trying. For example, I remember 20 years ago, I was a part of the project where Pakistan.gov.pk by Pervez Musharraf was started, and 32 ministries को automate किया गया, and उस पर बहुत काम किया गया, and there were different software houses which were involved at that time. बहुत कुछ हुआ, and then 5 years back I went back to the same ministry. पता चला कि वापस सारे का सारा गवर्नमेंट चली गई है on this manual system. और उस वक्त के सदर की और उस वक्त के वज़ीर आज़म की तस्वीर Pakistan.gov पे बड़ी बड़ी नजर आ रही है, फ्लैश लाइट के अंदर वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हुआ. सो आई थिंक इट्स we do try and then reverse हो जाता है, we do try reverse हो जाता है. So first of all, how to begin, and then more importantly, how to keep doing it. What do we need to do for that, आपके ख्याल में? So I think इसमें 2-3 चीजें which are at the top of my mind. One is that this concept that they have made a ministry for IT, as the ministry who is in charge or responsible for digitization of Pakistan is never going to work, right? So the IT ministry can be a conduit for sure to work with other ministries.
बिकॉज जैसे पहले भी हम बात कर रहे हैं कि देखें जो डिजिटाइजेशन है इज नॉट टू डू विथ वन थिंग, राइट? सो डिजिटाइजेशन is an impact on the overall industry, and Yeah. every industry needs to own it in what they need to do, right? So उसमें हमें सबसे पहले तो ये करना है कि इस तरह का मॉडल हो हमारी गवर्नमेंट में जो अलाउ करे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, ये सिर्फ इनका एजेंडा नहीं है टू कम अप विथ इनोवेशन और टू कम अप विथ व्हाट नीड्स टू बी डन, but it has to be on the agenda of every single ministry, whether it is commerce ministry, whether it is a petroleum ministry, oil ministry, whatever it is, right? So if one so this would be, you know, जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ के ज़माने में भी, you know, they tried to create kind of a consortium of, you know, different ministries. I think, I mean, इसमें थोड़ी obviously consistency की ज़रूरत है, governance की ज़रूरत है, framework एक बनाने की ज़रूरत है on how things will work. But I mean, this is the model which is very prevalent in every other country which has succeeded in or is very advanced in technology. I mean, they don't give it out just to one person or one institute and say कि भाई आप सिर्फ करें. So because yes, I mean, you know, one type of industry can do at least start some innovation, can do some private public partnerships, you know, on their own, but they cannot come up with all the use cases which are present, you know, with every other industry. So this I think is one thing. Second is obviously on the policy side. जैसे इमरान खान ने अभी एक digital, I guess he had chief digital officer Tanya Idris जो थी, तो so that kind of a model is a good model because it shows first of all that there is importance of, you know, taking this initiative, and secondly strategically a lot of you know, the things which need to be thought of are being thought of through that mechanism, you know, that पाकिस्तान के लिए strategic importance किन चीज़ों की है for us to get there. So अब आप जैसे देख रहे हैं कि e-commerce भी बहुत ज़्यादा तेजी से build up कर रहा है. There's some investment coming into, you know, buying some companies which are locally present here. Chinese, you know, are obviously very much into developing these models. और फिर platform के models आ रहे हैं. करीम ने अपनी super app निकाल दी, ये कर लिया, वो कर लिया. So इसके लिए I think ये बहुत ज़रूरत है कि हमें एक strategic level पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं. So इस तरह का एक framework अगर available है तो वो होना चाहिए. दूसरा ये है कि थोड़ा सा वो कर दें. Sorry, I'm sorry, बीच में कॉल आ जाती है. So थोड़ा सा उसको हम अगर कर दें तो इसमें हमारी वो बहुत बेहतर, that needs to happen and also needs to be you know kind of institutionalized so that there is some framework in which the public companies can work with the private companies. और जैसे आप लोगों ने भी पहले जिक्र किया, सैयद ने भी किया कि बहुत से जो प्रोजेक्ट्स बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज कर लेती हैं खुद से, तो अगर उसमें हम थोड़ा पार्ट डालें, जो कि आई थिंक पाशा इज़ वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, that we are trying to for the government to create policies where they mandate public private partnership in all of these large type of digitization efforts that are taking place in the country. Excellent. And अभी सैयद अमारा ने पाशा का जिक्र किया, so that was also one of my questions के I think Pasha can play a fundamental role in really connecting this complete ecosystem which is under development and flourishing in Pakistan, and then really becoming a voice and talking to the government and really, you know, bringing this connection. So where do you stand right now as an organization? What are some of the success stories so far, and what is in the pipeline? So I think Pasha is the body या आप कह लें कि प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू
ये बहुत सारे फंडामेंटल और फाउंडेशनल इश्यूज हैं इंडस्ट्री के, वो सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज सिस्टमेटिक चेंज आना बहुत मुश्किल है। पाशा ने काफ़ी रोल लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत एक्टिव हुई गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में। उससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी वो एक्टिव थे। सो आई वुड से कि 2015 ऑनवर्ड्स जब एक मिनिमम विदहोल्डिंग टैक्स लगा था इंडस्ट्री पे 8%, और वो सर्विस सेक्टर पे पूरे लग गया था, उस टाइम पे जो क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के रिजल्ट में पाशा के अंदर रियलाइजेशन आई कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। उस वक्त तक माइंडसेट ये था कि गवर्नमेंट से कोई भी कुछ कराना बहुत मुश्किल है, एफबीआर से कुछ भी लेना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं, और स्पेशली अंडर द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक प्रेशर ये लोग कोई किसी किस्म की आपको इंसेंटिव्स या वो टैक्स रिबेट्स या और चीज़ें नहीं देंगे। सो उस टाइम पे आई वुड से 2015 ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पॉलिसी पे की, एंड आई थिंक वी गॉट सम वेरी मेजर ब्रेक थ्रूज, जिसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हमें 2016 में एक्सपोर्ट टैक्स एग्जाम्पशन जो मुशर्रफ दौर में मिली थी। 2016 तक एक्सपोर्ट्स पे, आईटी एक्सपोर्ट्स पे टैक्स नहीं था, वो एक्सपायर हो रही थी, और उसके बाद टैक्स लगने से प्रॉब्लम ये था, ये नहीं था कि टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये था कि वो जो टैक्स मैन जब आता है ना आपके डोर पे, और द वे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज और हरासमेंट के इश्यूज कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं, सो उसको फिर हमने वी मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, और हम लोगों को टैक्स एग्जाम्पशन मिल गई एंड अंटिल 2022, और उसके बाद वो फर्दर एक्सटेंड टू 25 तक। आई थिंक इसके अलावा फिर वहां से एक लोगों को रियलाइजेशन आई कि वाकई में गवर्नमेंट को समझाया जा सकता है, और अगर आप एक्टिव काम करें गवर्नमेंट के साथ और ये पॉलिसी को करें एज ए इंडस्ट्री लेके चलें। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 1-2 सालों में हमें और फर्दर इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। उसके अंदर इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स को 5% किया। उसके अलावा पाशा ने एक उस वक्त 2016 में डिजिटल पाकिस्तान 2020 के नाम से एक शुरू किया नारा। उससे पहले वो डिजिटल पाकिस्तान वाज नॉट अ थिंग, और उससे ये हुआ कि उसमें हमने क्योंकि 2 पेन पॉइंट्स गवर्नमेंट के आइडेंटिफाई किए दैट दिस इंडस्ट्री को डिलीवर। हमने उसमें बात की एक्सपोर्ट्स ग्रोथ की, कि सबसे फास्टेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है आईटी इंडस्ट्री दे सकती है, और आज भी हम लोग भी हैड अ पोटेंशियल कि हम लोगों को 20 अरब पे होना चाहिए था, मगर हम 2 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं, बट स्टिल वी कैन मेक अप। और इसी तरह हमने बात की जॉब क्रिएशन मैसिव लेवल पे, जैसे इंडिया में 4 मिलियन प्लस फैमिलीज आर बीइंग फेड, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। सो जब ये वो उस नारे के साथ, डिजिटल पाकिस्तान के साथ, वी कनेक्टेड एक्सपोर्ट्स एंड जॉब्स, वी गॉट गवर्नमेंट्स अटेंशन। और उस वक्त से फिर सब्सिक्वेंटली पिछली गवर्नमेंट के आखिरी साल में और इस गवर्नमेंट में फिर फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ के पीटीआई ने अपनी आईटी पॉलिसी, डिजिटल पॉलिसी लॉन्च की। दिस वाज द फर्स्ट टाइम को पॉलिटिकल पार्टी डिजिटल की बात कर रही, और उसकी वजह से दूसरी पार्टियों को भी प्रेशर में उनको भी लॉन्च करनी पड़ी। और उसके बाद फिर एक प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बनी कि वो इनको करे। सो आई थिंक अभी कल परसों की बात है कि आई वाज लिसनिंग टू अ टेलीकॉम सीईओ, और वो कहता है कि यार ये पाशा ने थोड़ा 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 करके नाउ दे आर लाइक एवरीवेयर। मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी कि जी एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी कमेटी जहाँ पे आईटी की डिसीजन मेकिंग है, वहाँ इंडस्ट्री बॉडी का होना जरूरी है, एंड पाशा शुड बी देयर। सो ही सेड कि स्लोली पाशा हैज रियली बिकम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, और अब ये हर जगह पे हैं। वी आई थिंक टेलीकॉम कंपनियों को भी कोई अपनी पाशा बनानी चाहिए ताकि उनका जो मसले ये हल हो। सो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत मीगर रिसोर्सेज, 2-3 से ज्यादा एम्प्लॉइज कभी नहीं रहे पाशा के पास, फाइनेंसिस की कमजोरी रही है, तो बहुत आगे तक आ गए। और अब जो आप देखते हैं स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स लेवल के जो बड़े बड़े अरबों के मंसूबे बातें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को रियलाइजेशन है, आर्मी चीफ को रियलाइजेशन, एवरी सिंगल इदारा इज माइंडफुल। आई थिंक दैट स्पीक्स के इंडस्ट्री बॉडी क्या अचीव कर सकती है। मगर हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमें बहुत सारे मसले हल करने हैं, जिनमें मैंने आपको बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज हैं, उसमें ये ई गवर्नमेंट, ये जो डिमांड क्रिएशन है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एचआर के मसले हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े मसले हैं। और उसमें मेरे ख्याल में पाशा जैसी बॉडी, जैसे नेस्कॉम इंडिया में करती है रोल, पाशा कैन प्ले दिस रोल स्ट्रांगली, बट उसके लिए पाशा को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में a lot of people because वो they feel कि जो भी पाशा की एक्टिविज्म होगी उससे हमें तो वो बेनिफिट मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली एज एन इंडस्ट्री. तो वो समटाइम्स पाशा स्ट्रगल्स के वो जो फाइनेंशियल साइड है, लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं, लोगों की तरफ से जो आई थिंक फंड रेजिंग है, दैट्स वेयर पाशा नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट. और बहुत सारी जो कंपनीज हैं, अगर वो इफ दे थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स, इफ दे थिंक एज एन इंडस्ट्री कि अगर इंडस्ट्री आगे जाएगी तो हम खुद ही आगे जाएंगे, so then they will come forward and support it much more. We need 100 times more support from IT companies rather than we have right now. So I think inshallah Pasha can really uh, help government fix these issues. Excellent. And I'll come to my last question for today. And being in academia, I think this is a standard question which we love to ask. Doesn't really matter what the topic is. The question is that how academia and industry can work together in general, but also keeping in mind this very interesting effort of digitalization of Pakistani economy and the role of local tech. So how, Amara, do you think academia, especially the tech sector of academia and the students of academia, can play a role? And can we have any, can Pasha in particular, or maybe tech companies can plan a program in which universities input, professors input and students input can be directly used for solving some of the problems which we're facing? Yeah, I think definitely there's a huge potential for this kind of partnership, academia and the software houses, because software houses के पास unfortunately वो जो research में उन्हें time spend करना चाहिए, या the money that is required to do research, just the fact because they are so small and they have meager resources to do that kind of research. And if there is a partnership with the academia in this side as to what are the products which would be in demand in the future, and what are the market economies saying, I think that can play a huge role in us coming up with relevant products as well. I think LUMS जैसे थोड़ा बहुत करता है, आप लोगों का एक वो सेंटर भी है जिसमें जो स्टार्टअप्स वगैरह आती हैं, they come up with these projects, etc. So we need to do that at a bigger scale, and we need to do that more formally. So right now it is mostly an effort of individuals, who are probably in a certain university who are making things happen, but it's not a very formal way of doing it. I think your idea about academia working with the Pasha organization is, it's really brilliant, because Pasha is the only organization which can bring forth the whole software industry together. And उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकेडेमिया भी certain areas में research करना चाहती है, तो उनको कभी वो relevant नहीं मिलते, what is there. So जब वो करना चाहते हैं तो ये एक बन जाता है avenue for them to look at any Pasha companies. Plus, I think we definitely should have some kind of internship programs, which are which Pasha conduits through them, for all the different universities. That could be also an excellent avenue where there is some kind of sustainability. So ये मतलब कुछ एस्पेक्ट्स हैं. ऑफ कोर्स इनोवेशन में भी उनका बहुत रोल हो सकता है, बिकॉज जैसे सैयद बात कर रहे थे अबाउट क्रिएटिंग दीज लैब्स एट द सिटी लेवल, वहाँ पे अगर एकेडेमिया भी बीच में आ जाए तो देन इनोवेशन में भी उनका बहुत रोल हो सकता है. सो इट कुड नॉट ओनली बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बट ऑल्सो एकेडेमिया tri-party partnership which would be beneficial for the country as a whole. Excellent. Syed, coming to you, to add on, I have been a part of a number of projects during my time in Netherlands and in Germany, where this tri-party was very successful. So city as a lab concepts where universities were taking part was very successful. So what do you think about those kind of initiatives? We're also maybe thinking about a national internship program where Pasha can really
have a interesting process of placing students and helping them to go to different places and maybe start, connecting with the government, really going beyond what you're doing and really connecting with us, with academia. I think that can have a huge impact on the way we're doing business right now. देखिए, ये आपको पता है कि अब 20 साल से हम वो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की बातें सुन रहे हैं। वो कहते हैं ना कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज टू कीप ट्राइंग टू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि हम लोग बार बार वो बातें होती हैं और बार बार वही दोबारा करने लग जाते हैं लोग, और आउटकम्स चेंज नहीं होती। बहुत ज़्यादा पैसा ICT R&D फंड से और डिफरेंट तरीकों से इंडस्ट्री में, सॉरी एकेडमिया में इनोवेशन के लिए, R&D के लिए या अदरवाइज IT के लिए जाता रहा है। इसी तरह वी हैव सीन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स वो भी चले हैं। तो आई थिंक मॉडल का मसला है, और मॉडल का मसला वही, अगेन मैं बात माइंडसेट की करता हूँ, एक सोशलिस्ट माइंडसेट है गवर्नमेंट का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एसेंशियली देखा जाता है कि एज अ बैड गाय, आई मीन वो जब से वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का एक काम है ना कि वो सरमायादार को गाली देनी है और इसको, सो उससे एक ट्रेंड सेट हुआ है गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट में, अवाम में, कि जो बिजनेसमैन है ना वो एक ईवल बंदा है, और दैट्स व्हाई उसके अराउंड फिर किसी किस्म का इंसेंटिव बिजनेसेस की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा रुकावटें, और उससे होता यह है कि अरबों रुपया हमारा एकेडमिया में डालते रहे हैं, मगर वो उसमें कोई भी जब बेनिफिट उसमें से इंडस्ट्री की तरफ जाने लगता है तो वहां पे वो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के इश्यूज एंड ऑल दैट माइंडसेट के इश्यूज आ जाते हैं। दैट्स व्हाई वो फिर एकेडमिया में दे आर काइंड ऑफ एट इजी, वो उसमें कंफर्ट जोन में होते हैं कि यार मुझे तो पैसा मिल रहा है, सो वो फिर अपना काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए पैसे लिए 2-3 करोड़ रुपए, वो लकी रिसर्च अभी वो खत्म हुई तो दूसरा पकड़ ली ग्रांट, वो खत्म हुई तीसरी पकड़ ली, बट वो कमर्शलाइज नहीं हो पाती चीजें, वो आउटकम इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं हो पाती। तो वो उसमें जब तक हम इस मॉडल में ये चेंज नहीं करेंगे कि बीच में इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव हो डायरेक्टली, कि उसमें जो द प्रोग्राम शुड बी डिजाइन्ड इन अ वे कि उसमें इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया जाए। फॉर एग्जांपल R&D फंड के थ्रू जनरली ये किया जाता है कि हम, या HECB या और भी, कि हम पैसे देंगे यूनिवर्सिटी को, वो रिसर्च करे और बाद में वो एक पार्टनर ले आए इंडस्ट्री का और उसको वो फिर उसे कमर्शलाइज करें। अब वो जो इंडस्ट्री का पार्टनर है वो, अभी पहली बात तो जो रिसर्च करता है वो कहता है मैं IP तो मेरी होगी, मैं नहीं दूंगा किसी को। सो वो फिर क्या होता है कि इन दी एंड दे फाइंड सम फ्रेंडली कंपनी जो कि उनके किसी, तो वो बस एक दिखाने के लिए एक पार्टनर ले आए, और वो फिर दैट डजंट रियली वर्क। अब एक मॉडल डॉक्टर शुएब ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया, हमारे एक्सीलेंस सेंटर्स बने थे, उसमें भी यही मसला था, एकेडमिया सारी बैठी हुई है, इंडस्ट्री इज मिसिंग, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बिग डाटा है, बाकी हैं, वो इंडस्ट्री आपको नजर ही नहीं आती, वो बड़े बड़े सेंटर्स बन गए यूनिवर्सिटियों के अंदर, और इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक वॉचर। सो इन्होंने उसी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया, उन्होंने कहा कि पैसे बजाय कि हम लोग यूनिवर्सिटी को दें, व्हाट वी विल डू इज कि एकेडमिया से, इंडस्ट्री से प्रपोजल आएंगे एंड दे विल से कि फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वी वांट टू, ये प्रोडक्ट है और इसके लिए हम एकेडमिया में ये पार्टनर है हमारे साथ, और उसमें आप रिक्वायर करेंगे जो भी पैसे होंगे दैट विल बी स्पेंट ऑन रिसर्चर्स एंड यूनिवर्सिटी फोक्स, बट जाएंगे थ्रू इंडस्ट्री, सो दैट इंडस्ट्री के जिस चीज को कमर्शलाइज कर सकती है। सो पहली बात तो ये कि और जब उन्होंने ये IoT के अंदर इस तरह का प्रपोजल दिया, वी सॉ हंड्रेड्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंक्वायरीज फ्रॉम लार्ज कंपनीज जो आज तक वो नहीं इंटरेस्टेड होते थे। सो आई थिंक पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके पहले तो मॉडल्स को दोबारा देखना है, जिसमें सारा इंसेंटिव इंडस्ट्री में ना, एकेडमिया में ना जा रहा हो, उसमें इंडस्ट्री का भी इंसेंटिव क्लियर हो जो कि उनको वो करे। दूसरा मेरे ख्याल में बात वही आती है कि हमने ट्रेनिंग्स में हम कहते हैं कि लाखों ट्रेन कर दें हम लोग AI में, IoT में, डिफरेंट चीजों में, अच्छा वो जाएंगी किधर?
अब उन्होंने जाना है एआई मैंने कर लिया, अब मैं एक्साइटेड हूँ एआई के बारे में, नौकरियां ही नहीं है। क्यों नहीं है नौकरियां? यहाँ की कंपनीज एआई में काम ही नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? कोई एआई का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है जिसको वो ले लें। फॉर एग्जांपल सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, तो उसमें वीडियो एनालिटिक्स और वो कितनी एआई की पॉसिबिलिटीज है, बट वो सेफ सिटी वो सारा का सारा बाहर से प्रोक्योर हुआ, गवर्नमेंट के अंदर ही वो एक है, और उसकी एक एपीआई भी किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है, तो वो कहाँ से रिसर्च होगी? इसी तरह नादरा के पास जो डेटा है, इसी तरह प्राल के पास, एफबीआर के पास डेटा है। सो ऑल दिस लाइक ट्रेजर ट्रोव ऑफ डेटा एंड द प्रोजेक्ट्स वो एक्सेस में नहीं है इंडस्ट्री के। सो होता ही है, बजाय इंटर्नशिप्स आप करा भी दें तो इनके पास मीनिंगफुल वर्क नहीं है। वो फिर क्या करेंगे? वो इनको फोटो स्टेट कराने पे लगाएंगे और पैसे लेके गवर्नमेंट से। सो व्हाट यू नीड टू डू इज के इंडस्ट्री को उन प्रोजेक्ट्स की एक्सेस दें और उन प्रोजेक्ट्स पे रिक्वायर करें कि इतने लोग आपने लाजमी हायर करने यूनिवर्सिटियों से और इतने स्टूडेंट्स लाजमी आपने रखने। देन यू सी के इंसेंटिव इज बिल्ट इन, और फिर आपको एआई होती नजर आएगी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती नजर आएगी और लोग बनते हुए नजर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये कुछ भी। On the last note, I really hope that Pasha then can push for this kind of a change, and really hopefully we'll one day see कि जो आपने मॉडल प्रेजेंट किया है ये इसकी कोई ना कोई शेप कुछ सालों में हमें नजर आती है, और we can start working maybe through a central organization with the government, we as well as our students. So on this note, I'd like to thank you both for your time. And for your very, very interesting remarks, and also for your very honest and open remarks. You know, you didn't try to be pleasing. It was very open conversation. It was a lot of fun. I learned a lot from this exercise. I hope our audience also learns from this. It'll be online for those who have watched, maybe have joined later. This will stay online on our Facebook page, and you can watch it later whenever you like. Thank you very much, everyone, for joining us. Thank you very much, Syed and Amara, for your lovely time and answers. Thank you. Thank you.